In this video, we will discuss introduction and definition of marginal productivity theory of factor pricing or marginal productivity theory of distribution or marginal productivity theory of wages. हमने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें फैक्टर प्राइसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग दिया हुआ है और उसमें बताया हुआ है कि व्हाट इज़ फैक्टर प्राइसिंग, व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाई वी कॉल फैक्टर प्राइसिंग एज डिस्ट्रीब्यूशन, फैक्टर प्राइसिंग को हम डिस्ट्रीब्यूशन क्यों कहते हैं। अब इसकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी है, इसको हम किसी भी फैक्टर की एग्जांपल लेके स्टडी कर सकते हैं। जैसे लैंड की एग्जांपल लेके, लेबर की एग्जांपल लेके, कैपिटल की एग्जांपल लेके, हम किसी भी फैक्टर की एग्जांपल लेके हम स्टडी कर सकते हैं। तो हम अगर लिखेंगे अपने एनालिसिस में सपोज फैक्टर ए, देन वी विल यूज़ प्राइस ऑफ ए, बट हेयर वी विल यूज़ फॉर एग्जांपल लेबर। तो लेबर जब हम लेंगे तो उसकी प्राइस ले लेंगे वेजेस। इसलिए ये थ्योरी जो है वो वेज की थ्योरी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी यही थ्योरी है, डिस्ट्रीब्यूशन की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी भी यही है और फैक्टर प्राइसिंग की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी भी यही है। ये टोटल 5 वीडियोस होंगी इसकी and this is the first part. In first part we will discuss introduction and definition of MP theory. Marginal productivity theory is the oldest and most significant theory of factor pricing. फैक्टर प्राइसिंग की सबसे ओल्डेस्ट थ्योरी है, ये पुरानी थ्योरी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है। It was developed by German economist T.H. van Thunen in 1826. This is J.H., not T.H. J.H. van Thunen was a prominent 19th century German economist. Austrian economists Karl Menger and Baum Webrick this is C. Karl Menger, C-A-R-L. Karl Menger was an Austrian economist and the founder of the Austrian School of Economics. In 1871, he published a book entitled Principles of Economics, in which he challenged classical cost-based theories of value with his theory of marginality, that price is determined at the margin. Eugen van Baum Warburg, ये इनका पूरा नाम है। Here it is A, not E, और यहाँ हाइफन है। Baum Warburg was an Austrian economist who made important contributions to the development of the Austrian School of Economics and Neoclassical Economics. Eminent economist Joseph Schumpeter was the student of Baum Warburg. French economist Walras. Leon Walras was a French mathematical economist and geologist. Walras formulated the marginal theory of value and pioneered the development of general equilibrium theory. English economists Wicksteed and Edgeworth. Philip Wicksteed was a UK-based economist. Francis Isidro Edgeworth was an Anglo-Irish philosopher and political economist. He developed utility theory, introducing the indifference curve and the famous Edgeworth box. American economist John Bates Clark,
was an American neoclassical economist. He was one of the pioneers of the marginalist revolution and opponent to the institutional school of economics. Institutional economics focuses on understanding the role of the evolutionary process and the role of institutions in shaping the economic behavior. Clark spent most of his career as professor at Columbia University, USA. ये कुछ इकोनॉमिस्ट्स हैं जिन्होंने टाइम टू टाइम ये थ्योरी डेवलप की है, मार्जिनल थ्योरी। तो ये सभी मार्जिनल रूल, मार्जिनल प्रिंसिपल को यूज़ करने वाले इकोनॉमिस्ट हैं, जैसे मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, फर्म का इक्विलिब्रियम हम बनाते हैं MRMC के बेस पे, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है MUX इक्वल्स टू MUY। तो मार्जिनल रूल को, मार्जिनल प्रिंसिपल को अपनाने वाले, मार्जिनल प्रिंसिपल को डेवलप करने वाले ये सारे इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने डिफरेंट वर्ड के पार्ट्स में देखो ये मार्जिनल रेवोल्यूशन को डेवलप किया है। जर्मन में इन्होंने, ऑस्ट्रिया में इन्होंने, फ्रांस में इन्होंने, इंग्लैंड में इन्होंने, अमेरिका में, US में इन्होंने। So this theory is given by all these economists. Now, what is the definition of this theory? According to Mark Bloch, this is not Baluk, it is Bloch, Plaug. Mark Bloch was a Dutch-born British economist. Now, according to Bloch, the marginal productivity theory contends that in equilibrium, each productive agent means factors of production, land, labor, capital, entrepreneur. Each productive agent will be rewarded in accordance with its marginal productivity. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हर प्रोडक्टिव एजेंट कौन, जैसे लैंडलॉर्ड, लेबर को देने वाले लेबरर, कैपिटल को देने वाले कैपिटलिस्ट, और एंटरप्रेन्योर वाले प्रॉफिट वाले। तो जितने भी जो प्रोडक्टिव एजेंट हैं इनकी जो प्राइस है, जैसे लैंड की हम प्राइस बनाते हैं रेंट, लेबर की प्राइस बनाते हैं वेजेस, कैपिटल की प्राइस बनाते हैं इंटरेस्ट, और इसके होते हैं प्रॉफिट्स। पाई के साथ लिखते हैं हम इसको, प्रॉफिट को पी के साथ नहीं लिखते, बिकॉज पी इज यूज्ड फॉर प्राइस इन इकोनॉमिक्स। तो ये मैथमेटिकल पाई वाला मीनिंग वाला पाई नहीं है, इट इज ओनली सिंबल फॉर प्रॉफिट। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी के अकॉर्डिंग, हर जो प्रोडक्टिव एजेंट है उसको जो प्राइस पे की जाती है वो की जाती है उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग, इन अकॉर्डेंस विद इट्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। तो अगर हम लेबर की बात करें, लेबर की प्राइस वेज रेट क्या होगी, इक्वल्स टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। अब लैंड की प्राइस क्या होगी, इक्वल्स टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। इसकी प्राइस क्या होगी, इक्वल्स टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। तो हर फैक्टर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बेस पर हम उसको उसका हिस्सा पे करेंगे। तो जब हम हर फैक्टर को मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग उसका हिस्सा पे करेंगे तो सारा आउटपुट इन 4 फैक्टर्स में डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज वी नो टोटल इज इक्वल टू समीशन ऑफ द मार्जिन। टोटल जो होता है वो सारे मार्जिन्स का जोड़ होता है। लेट वी एक्सप्लेन दिस थिंग ऑन अ सेपरेट पेज। इस पॉइंट को अगर हम दोबारा एक्सप्लेन करें डिटेल में, suppose these are the units of good or units of anything, you can say 1 2 3 4 5. This is suppose the total product, 10
इसको हम डिमिनिशिंग रिटर्न पर अगर इंक्रीज़ करें, 10 + 8 18, 18 + 6 24, 24 + 4 28, 28 + 2 30। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, इनमें चेंज कितनी आई, तो पहले तो ये 10 ही है, फिर इसमें 18 - 10 8, 24 - 8 6, 28 - 24 4, 30 - 28 2। तो अगर हम टोटल प्रोडक्ट देखें, दिस इज द समीशन ऑफ द मार्जिन, 10 + 8 18 + 6 24 + 4 28 + 2 30। तो किसी भी लेवल पर हम इसको चेक कर सकते हैं। मान लो हम इस लेवल पर चेक करें, ये 24 क्या है, दिस प्लस दिस प्लस दिस, 10 + 8 18 + 6 24। Therefore we can say that total equals to summation of the margin. अब जितना मार्जिनल प्रोडक्ट लैंड ने किया, जितना मार्जिनल प्रोडक्ट लेबर ने किया, लेबर का जो हिस्सा है, ये मान लो यूनिट्स हैं एक फैक्टर की, मान लो लेबर की ये यूनिट्स हैं, तो ये लेबर का मार्जिनल प्रोडक्ट लिया हमने। ऐसे ही जो कैपिटल का मार्जिनल प्रोडक्ट होगा, ऐसे ही जो एंटरप्रेन्योर का होगा, सपोज टेक्नोलॉजी का बोल लो चाहे, तो इन सभी को जोड़कर जैसे हमने ये बनाया, बनेगा टोटल प्रोडक्ट। तो जब हम, पहले तो मैंने आपको यहाँ पर ये बताया कि सभी मार्जिन को जोड़कर टोटल बन जाएगा। टोटल प्रोडक्ट के हमारे पैदा करने वाले 4 ही फैक्टर हैं, तो चारों ने जो जो पैदा किया, जिन चारों की जितनी जितनी कंट्रीब्यूशन है, जितना जितना मार्जिन प्रोडक्ट है, वो जोड़ के बन जाएगा टोटल, जैसे ये बनाया हमने। अब हम, ये तो हो गया रियल टर्म में, प्रोडक्शन की टर्म में, गुड्स की टर्म में। जब हम इसकी मनी टर्म में वैल्यू निकालेंगे आउटपुट की, तो इसके बराबर, इसके एमपी के बराबर हम इसको रेंट दे देंगे, इसके एमपी के बराबर हम इसको वेज दे देंगे, इसके बराबर हम इसको इंटरेस्ट दे देंगे, इसके बराबर बन जाएंगे प्रॉफिट्स। इट मीन्स जो सारा आउटपुट है वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जब हम फैक्टर्स को उनकी एमपी के अकॉर्डिंग प्राइस पे करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जो वेज रेट हैं वो हम पे करेंगे इक्वल्स टू द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ऐसे ही हम रेंट पे करेंगे इक्वल्स टू द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लैंड, इंटरेस्ट पे करेंगे इक्वल्स टू द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, ऐसे ही एंटरप्रेन्योर के केस में। तो सारा आउटपुट जो है वो चारों में डिवाइड हो जाएगा। दिस इज द बेसिक definition, fundamental definition of the marginal productivity theory, that the factors of production are paid as per their marginal productivity। तभी इसका थ्योरी का नाम है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, कि हम फैक्टर्स को उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बराबर उनकी प्राइस पे करते हैं। जहाँ पर जैसे हमने यहाँ लिख लिया फॉर एग्जांपल लेबर, अगर हम कोई भी फैक्टर ले लें, एनी फैक्टर मान लो, प्राइस ऑफ ए फैक्टर विल बी इक्वल्स टू द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द ए फैक्टर। तो ए फैक्टर की जगह आप कोई लेबर लगा सकते हो, कोई कैपिटल लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। हम इस पूरे 5 वीडियोस को एक्सप्लेन करने के लिए लेबर की एग्जांपल ले लेंगे, तो लेबर के साथ हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें वेज रेट हमारी डिसाइड हो जाएगी। तभी हमने स्टार्टिंग में कहा कि ये जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी है, ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी फैक्टर प्राइसिंग की, या फिर आप इसको वेजेस की थ्योरी भी बोल सकते हो, क्योंकि हम इसकी जो स्टडी करेंगे वो लेबर की एग्जांपल लेकर करेंगे। दिस वाज द इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ
wages. Thank you. Thanks for watching this video.